पिछले महीने बांग्लादेश में भारी संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए। शुरुआत में तो प्रोटेस्ट पीसफुल ही थे, लेकिन अब हालातों ने बड़ा खौफनाक और हिंसक मोड़ ले लिया है। बांग्लादेश में अब एक मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। हे गाइज, আজকে টপিক হচ্ছে বাংলাদেশ নিয়ে। আর তার আগে বলি, অবশ্যই আমার চ্যানেলে যদি নতুন দর্শক হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আপনাদের একটা লাইক আমাকে আরও মোটিভেশনাল, আরও রিয়ালিটি ভিডিও তৈরি করতে সাহায্য করবে। তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন নতুন চ্যানেল, যাতে খুবই তাড়াতাড়ি চ্যানেলটা গ্রো করতে পারি। আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া তো কিছুই করা যায় না। অবশ্যই আমি আশাবাদী আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করবেন। আমার চ্যানেলটা আপনাদের দোয়ায় খুবই তাড়াতাড়ি গ্রো হবে ইনশাআল্লাহ, এটা তো আশা করি আপনাদের কাছে। তো মেন টপিক আসা যাক। আজকের টপিক হচ্ছে বাংলাদেশের যে কোটা সিস্টেম, যে কোটার জন্য রক্তারক্তি হচ্ছে গোটা বাংলাদেশ। ছাত্র বনাম বলতে পারি শেখ হাসিনা সরকার একটা কি বলবো, একটা সেই এমন মাইন্ডসেট করে ফেলেছে। কোনো সরকার কি কোনো দেশের ছাত্রীদের উপর এরকমভাবে আর্মি ডিক্লেয়ার করতে পারে? অবশ্যই আপনাদের উত্তর হবে না, কিন্তু বাংলাদেশে এটাই চলছে। বাংলাদেশে একটা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা, যেটা বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন নামে পরিচিত, সেই পরীক্ষাতে পাস আউট ছেলেরা নিজেদের রিজার্ভেশনের জন্য, নিজেদের চাকরির জন্য সরকারের কাছে যে কোটা পাওয়া উচিত, সেই কোটা তার থেকেও বেশি সরকার কমিয়ে যারা মুক্তিকামী যোদ্ধা আছে তাদের ছেলেদেরকে চাকরি দিচ্ছে, তাদের ছেলে নাতনি যা আছে তাদেরকে চাকরি দিচ্ছে। কিন্তু যারা পাস আউট করেছে, মুক্তিকামী হলেই তো হবে না, যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিল তারা তো চাকরি পেয়েছে, তাদের ছেলেরা তো চাকরি পেয়েছে, তাহলে এটা বংশ পরম্পরা চাকরি হয়ে যাচ্ছে না? এটার জন্যই বাংলাদেশে এত রক্তারক্তি। বাংলাদেশ সরকারকে বোঝা উচিত এই নৃশংসভাবে ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা না করে একটা আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যার ফলে এটা সমাধান হতে পারে। 30% আসন সংরক্ষিত থাকে মুক্তিকামী যোদ্ধাদের জন্য, কিন্তু ওটা তো কবে কেটে গেছে, কিন্তু এখনো চলছে। মুক্তিকামী যোদ্ধাদের ছেলেরা, তার নাতিরা, তার নাতিরা সেই কোটার ভিত্তিতে চাকরি পাবে। কিন্তু এটা কি করে হয় ভাই? তো চলেন ভিডিওতে মেন টপিকটা আলোচনা করি। আমাদের ধ্রুব রাঠি স্যারের ভিডিওতে সব কিছু ডিটেলস ভাবে দেখানো হয়েছে, কোথা থেকে কি হয়েছে, কোটা সিস্টেমটা কি। চলেন ভিডিওতে যাওয়া যাক। प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने बांग्लादेश में भारी संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए। शुरुआत में तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल ही थे, लेकिन अब हालातों ने बड़ा खौफनाक और हिंसक मोड़ ले लिया है। बांग्लादेश में अब एक मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। Troops on the streets, a strict curfew, a near blackout of communication. देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है। क्लैशेस में अब कम से कम 150 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों जख्मी हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। आखिर क्या कारण है इस सब के पीछे? आइए समझते हैं इस पूरी सिचुएशन को विस्तार से आज के इस वीडियो में।
इन प्रोटेस्ट के पीछे सीधा कारण है दोस्तों रिजर्वेशन। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इस सरकार के कोटा सिस्टम के खिलाफ। वो कोटा सिस्टम जिसके अनुसार 56% नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व्ड है अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। इसका मतलब सिर्फ 44% ऐसी नौकरियां हैं जहां पर मेरिट के बेसिस पर नौकरी मिल सकती है। ये सिस्टम इंडिया से काफी अलग है क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर के बेसिस पर हो रही है। इसे बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना होगा। आजादी मिलने से पहले जैसा कि आप जानते ही होंगे बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसे ईस्ट पाकिस्तान करके बुलाया जाता था और आज के दिन के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन थी। ऐसे लोग थे जो उर्दू भाषा में बात किया करते थे, लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को इम्पोज किया ईस्ट पाकिस्तान पर। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हुई। देश के 59% एक्सपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से आते थे, लेकिन सिर्फ 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स ईस्ट पाकिस्तान के पास जाती थी। नवंबर 1970 में जब भोला साइक्लोन आया, एस्टिमेटेड 3 लाख लोग मारे गए ईस्ट पाकिस्तान में। वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पिछली सेंचुरी। World in 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने कोई ज्यादा एफर्ट नहीं किया रिलीफ प्रोवाइड करने में यहाँ के लोगों को। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हुई। साल 1970 की इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी, वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट्स थी। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट किया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वोट्स गए सिर्फ अवामी लीग पार्टी को, जिसे लीड किया जा रहा था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। इस इलेक्शन रिजल्ट का नतीजा ये होता कि अवामी लीग दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर गवर्न करती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो बिल्कुल ये नहीं चाहती थी। उस समय के पाकिस्तान मिलिट्री के कमांडर इन चीफ याहिया खान ने इस इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ इंपोज किया गया और रिस्पॉन्स में शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करी प्रोटेस्ट के तौर पर। इसी समय वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने बड़े भारी स्केल पर अत्याचार किए ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया और लाखों लोगों को मारा गया। एक जेनोसाइड हुआ ईस्ट पाकिस्तान में। करीब 1 करोड़ लोगों को रेफ्यूज लेनी पड़ी इंडिया में। अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की इंटरनली डिस्प्लेस हो गई इसकी वजह से। इसी के बाद ही था कि 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हमें देखने को मिली। ये वही वॉर थी जहां पर इंडिया ने मदद करी और बांग्लादेश को आजादी दिलाई अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। Mujibur Rahman, the leader of East Pakistan, declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengalis. ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी जिसकी वजह से बांग्लादेश आजाद देश অবশ্যই তারা फ्रीडम फाइटर्स হাজার ছিল फ्रीडम फाइटर्स आज की তাদেরকে দিয়েছে, में रेलेवेंट है। তারপরেও তাদের ছেলেদেরকে দিয়েছে, কিন্তু নাতি নাতনি তার নাতি নাতনি তার ছেলে তার নাতি নাতনি এইসব হলে তো কি আসবে। আর কোটার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে আজ इसके अलावा कुछ और रिजर्वेशंस हैं जैसे कि 10% औरतों के लिए, 10% जिला कोटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, 5% रिजर्वेशन है एथनिक माइनॉरिटीज के लिए, একজন দেশের সরকার হয়ে দেশের নাগরিকের উপর के लिए जिन्हें फिजिकल डिसेबिलिटीज है। इन सभी नंबर्स को ऐड अप करोगे तो टोटल 56% रिजर्वेशन बनती है, लेकिन मेजॉरिटी शेयर 56% में से है ये 30% फ्रीडम फाइटर्स का कोटा। इस आर्टिकल को देखिए, ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट फहीम फारूकी, जो कि एक प्रोटेस्टर भी हैं, इनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट बेसिकली कोटा सिस्टम की रिफॉर्मेशन के लिए है। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि एथनिक माइनॉरिटीज वाली रिजर्वेशन और फिजिकल डिसेबिलिटीज वाली रिजर्वेशन को छोड़कर बाकी सारी रिजर्वेशन हटा दी जाए सरकार के द्वारा। यहाँ पर ये फ्रीडम फाइटर्स वाली रिजर्वेशन सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी शुरुआत साल 1972 में ही हो गई थी, आजादी मिलने के सिर्फ 1 साल बाद। इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज ने उस साल एक ऑर्डर इशू किया था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कोटा होना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क पर डाला, जिन लोगों ने संघर्ष किया अपने देश को आजादी दिलाने के लिए, उन लोगों के लिए 30% नौकरियां रिजर्व की है। नोट करने वाली बात यह है कि ये चीज सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए एप्लीकेबल थी। बाद में जाकर 1997 में इस कोटा को एक्सटेंड कर दिया गया कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए, और 2010 में फिर कहा गया कि उनके बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए। हालांकि एग्जैक्ट कोटा बाकी और कैटेगरीज के लिए चेंज होता रहा ओवर द इयर्स, लेकिन इन दी एंड यही हुआ कि टोटल परसेंटेज 56% तक पहुंच गए। 2010 के इस ग्रैंड चिल्ड्रन वाले फैसले के बाद 2012-13 में एक बड़ी मूवमेंट भी हुई थी बांग्लादेश में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ। इंडिया में जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, ऐसे ही बांग्लादेश में है बीपीएससी का एग्जाम, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। करीब 4 लाख ग्रेजुएट्स हर साल 3000 सिविल सर्विस जॉब्स के लिए कंपीट करते हैं बांग्लादेश में।
काफी खराब हालत है और नौकरियों की सख्त कमी है। फरवरी 2018 में बांग्लादेश साधारण छात्र अधिकार संरक्षण परिषद ने रिफॉर्म्स की डिमांड करी बांग्लादेश गवर्नमेंट सर्विसेज में। उस समय भी क्लैशेस देखने को मिले उन स्टूडेंट्स के बीच में जो इसके खिलाफ थे और वो स्टूडेंट्स जो प्रो कोटा। लेकिन प्रेशर में आकर अक्टूबर 2018 में बांग्लादेश की सरकार ने सर्कुलर इशू किया कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जॉब्स के लिए ये कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा। बात यहीं पर खत्म हो गई होती, लेकिन 2021 में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम को हटाने की। और 5 जून 2024 यानी कि पिछले महीने हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो पेटिशनर्स कह रहे हैं वो सही है। सरकारी सर्कुलर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और कोटा सिस्टम को वापस यही कारण था कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट फिर से जाग उठे। আমার এইভাবে ফ্যাক্ট রিলেটেড যদি ভিডিও পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে আমাকে সাপোর্ট করবেন যাতে আরও এই ফ্যাক্ট রিলেটেড আরও এই রিয়ালিটি ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। থ্যাংক ইউ দিস ওয়াচিং মাই ভিডিও। খুদা হাফেজ।